गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Namaskar, Masters. A very warm welcome to all of you today. Thanks for joining with us. Just a minute, please. Thank you for joining with us. We will continue our journey with the Bhagavad Gita, chapter 6, Dhyana Yoga. So, let us start today with the story of Parikshit Maharaj. He is a son of Abhimanyu and a grandson of Arjuna. So we all know from the tales of Mahabharata Bhagavatam about the story of Parikshit Maharaj. So let me take you to the one keen point where our attention has to be today. So in that story, when Parikshit Maharaj have got a sharp from one of the sage to for doing a mischief with that sage, he got a sharp saying that you will die in a 7 days with a very snake bite. So Takshak was very adamant to kill Parikshit Maharaj. So in this 7 days, he was very worried. He got a very insight. He was reciting. I mean, he was remembering all his life, what he have done, what he was doing, why he got this, and he was very sorrowful and he was very sorry for his misdeeds that he have done to the sage. And he was without a mind. He was sobbing with a fear and pain and cry in his life. So then, what happened the last 7 days? Last 7 days, Sukha Maharshi, he is the son of Veda Vyasa, the Vyasa Maharshi who have written Mahabharata and Bhagavad Gita. So Sukha Maharshi, in a very young age, he got to know all these Puranas, and he was very much inclined to Bhagavatam, Bhagavad Gita. So he have learned in a very young age from his father. So in those last 7 days, Sukha Maharshi used to come to Parikshit Maharaj, and he used to recite Bhagavata Purana. And with that 7 days after completion of Bhagavata Purana, he got moksha. So what we have to understand here is, in those 7 days, though he was very sorrowful of his death, the uncommenced death, the unseen death that he have got all of a sudden, but yet he have attempted to change himself to get a transformation. And a guru and a sage, he pleaded to a sage, a guru, uh, Guru Sangatyam he got, and Bhagavatam enlightened him, transformed him, not towards the death, but towards the moksha, towards the enlightenment of his soul. So that's what we have to understand. Um, During that Bhagavata Purana, there was a ladder kept in that very room where Parikshit Maharaj was there. Even that ladder got moksha. Each day when Bhagavata Purana ended, in that ladder, each there are 7 steps in that ladder. Each step would break.
Even the non-living being in that room got moksha from Bhagavad Purana. So if we all have to understand like how powerful and how transformative are our scriptures, how transformative are those learnings given by Sri Krishna Mahaprabhu. How a non-living thing and a living being can be transformed because everything is kan kan mein shankar hai. Everything is a form and shape of a Parabrahma Swarupa. Each and every atom can transform itself towards the Parabrahma Tattva, towards the renunciation, towards the inclination to the universal consciousness. And gaining it is a very moksha that we all have to give. So, with that story, we'll start uh, today's journey. So, we are reciting chapter 6, verse 3. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तत्सैव समः कारणमुच्यते. And the meaning of this verse is to the soul who is aspiring for a perfection in yoga, work without attachment is said to be the means, and to the sage who is already elevated in yoga, tranquility in meditation is to be the means. So here Sri Krishna Mahaprabhu हमको बोल रहे जो कर्म योग है वो अपने कार्य करने से कार्य को भगवत अर्पण करने से वो अपने मोक्ष मार्ग में चल पड़ता है जो कर्म योग से ऊपर खड़े हैं मतलब जो डिटैचमेंट पाली है तो डिटैचमेंट के बाद अ, ध्यान योग आता है डिटैचमेंट के बाद जो अपने आप के अंदर का सुधार ध्यान मार्ग से ही अनुभव होता है तो पहले कर्म योग डिटैचमेंट एंड देन कम्स द ध्यान योग मेडिटेट अपने आप में रमित हो जाओ डू अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन डू अ इनर जर्नी फॉर अ मेडिटेशन एंड विदाउट डिटैचमेंट इट इज नॉट पॉसिबल and with the detachment it is the best way of the enlightenment. Verse 7. यदा हिनेन्द्रियान् यदा हि यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते. तो इधर श्री कृष्ण महाप्रभु बोल रहे कि एक मिनट when one is neither attached to the senses objects nor to the actions, such a person is said to be elevated in the science of yoga and having renounced all the desires for the fruits of the action. तो योगी कौन कहलाता है योगी ये कहलाता है कि वो अपने कार्य पे स्थित हो पर फिर भी उससे डिटैच्ड हो और अपने एक्शंस का रिजल्ट्स नहीं देखे हो और कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु से उसका कोई बंधन नहीं है हम सारे वस्तुओं को यूज करते हैं उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं पर जो हमारे वस्तु में जब भी हमारा ध्यान बस जाती है हमारा इष्ट बस जाती है बार बार हमारी सोच भी उसी में विलीनता होगी या परीक्षित महाराज भी वो कलयुग में पैदा हुए थे तो कलि पुरुष ने बोला कि तुम कलयुग के धर्म के परे नहीं हो तो सो यू चूज ऑन व्हाट यू विल गेट द अटैचमेंट ऑन व्हाट यू विल हैव द अटैचमेंट तो परीक्षित महाराज ने जो कले ने उसको जूझ दिखाया he have shown him many inclinations bad inclinations so परीक्षित महाराज ने चूज किया गोल्ड
तो उसने चूज किया गोल्ड। तो पहले ये सोचा था कि ऑब्जेक्ट ही है, इट इज नॉट एनी, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट एनी व्यसन। तो ऑब्जेक्ट ही है, आई कैन रेनाउंस इट वेरी इजीली, सो ही चोज गोल्ड। पर उसके बाद वो कली का प्रभाव पड़ते ही he started gaining more and more and more gold, and with earning, with his possession of the gold, he got anger, he got lust, he got greed. And to get away from those all the inner feeling, to all the feelings, to all those senses that are that are that have a presence of Kali Purush, he had to go with the Bhagavad Marga. So here we also have to understand: do not attach yourself to any objects, whatsoever it is, how so important it is. Do not get attached to the objects, or nor do not get attached to the actions. So we all have objects. We all use them. It is part of our life, but do not get attached to the objects. And we all do actions. We all perform well. We all get the results fruitful results out of it with Bhagavad Prasada. But do not attach to your actions. So श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, अपने आप में एलिवेशन पाने के लिए, to get the enlightenment, do not attach yourself with objects nor with the actions. So verse 5. उद्धरे आत्मनात्मानं न आत्मनवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि एलिवेट योरसेल्फ through the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of self. जब मैं कहीं पढ़ रही थी, एक पोएट ने माइंड को टाइगर से जुड़ के उपमान दिया था। माइंड इज जस्ट लाइक ए टाइगर। जो आप उसको कंट्रोल करे इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू पोजेस, दैट यू हैव। जो आप उसको कंट्रोल नहीं करे वो तुम्हें खा जाएगा। मतलब माइंड पे, अपने माइंड पे डिटैचमेंट और कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। और आप हम अपने माइंड के साथ मास्टर नहीं करेंगे, हमारे माइंड हमको मास्टर करेगी। तो वही कली का प्रभाव है। कली पुरुष और कहीं नहीं है। कली पुरुष हमारे भावों में है, हमारे थॉट्स में है, हमारे अटैचमेंट्स में है। तो हम उसका उदाहरण करें तो कली के प्रभाव से हम बाहर उभर सकते हैं और भगवान के समीप हमारा ध्यान रहेगी। So the next verse of it is, just a minute friends, it is still loading. तो अभी दो श्लोक हमें पढ़े, और आगे के दो श्लोक के लिए मैं एक स्टोरी कहूंगी, एक छोटी सी स्टोरी। जब रमन महर्षि जो साउथ के हैं, ही इज फ्रॉम तिरुवनंतपुरम अरुणाचलम, he is well known, all of us, for his Brahma Tattva, for his journey towards who I am. तो एक बार इंसिडेंट ये ऐसा हुआ कि एक फॉरेनर आके श्री राम रमन कृष्ण महर्षि को पूछता है, वाई आर यू सिटिंग ऑन योर टाइगर स्किन, इज इट नॉट अ सिन? सो रामकृष्ण महर्षि रामकृष्ण महर्षि राम सॉरी, क्षमा करें, रमण महर्षि बोलते हैं कि इट इज नॉट लेड बाय मी।
आई एम जस्ट सिटिंग हियर। तो ये फॉरनर जो भक्त है वो बोलते हैं, इट इज नॉट अ सिन प्रभु that one has committed killing deers and tigers for merely sitting on those skin. If you're saying everything is a illusion, everything doesn't affect you, then does this sin affect you? तो रमन महर्षि बोलते हैं कि इल्यूशन, टू whom it is a illusion, ये पाप किसको है? ये पाप है, पर ये पाप किसको अफेक्ट कर रही है? ये अपने आप को अंदर के जाके देखो। इल्यूजन, इल्यूजन टू whom it is applying, who are facing this illusion, तो you understand that. तो ये foreigner, he was still not settled with the answer. He asked, we aren't we all are murderers? Are we not killing these animals and you making use of skin? We are all are murderers. तो रमन महर्षि हंस के बोलते हैं, my dear son, yes, we are all are murderers. Every day, every minute, every second, we are killing our inner self. And by killing our inner self, we are all murderers. We are committing those very sin in every second of our life. And yet, we are living upon it and not understanding it. तो उसके बाद वो सुबह का उसका कन्वर्सेशन था। तो शाम को ऐसा हुआ कि एक चमत्कार हुआ। तो शाम को एक साधु आता है, प्रणाम करता है, रमन महर्षि को बोलता है कि मैं बहुत दिनों से आपका ये टाइगर स्किन देख रहा हूँ, आई वॉन्ट द टाइगर स्किन, मुझे चाहिए, क्योंकि तो रमन महर्षि बोलते हैं, उठ के बोलते हैं, ले लो। तो आर यू श्योर करके सेज बोलता है। हाँ। तो रमन महर्षि बोलता है, ले लो। तो मैं ये ले जा रहा हूँ, आपको कुछ दिक्कत नहीं तो होगी? तो रमन महर्षि ने बोला, मुझे क्यों दिक्कत होगी? हाँ, तुम्हें दिक्कत जरूर होगी। अगर कोई तुम्हें पकड़ लिए इस टाइगर सिंह से, तो तुम्हारा क्या होगा ये मुझसे मत मांगना। फिर मुड़ के मुझे मत देखना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम लेके जा रहे हो, और उसका रिजल्ट भी तुम्हारा ही है। तो रमन महर्षि ऐसे बोला। तो साधु ने बोला कि इट इज ओके, आई कैन टेक द रिस्क, कोई नहीं है इधर। तो उसी समय में मैंने जानबूझ के आया। तो रमन महर्षि बोले, तो देरी किस बात की, ले जाओ। तो ही हैव रोल्ड दिस टाइगर स्किन एंड वो अपने अपने कंधे पे लपेट के ले जा रहा था। तो उसी दिन उसी वक्त दंड पानी करके एक भक्त आया था। तो उसने देखा था। तो साधु को कॉन्फ्रंट किया और बोला कि तुम ये क्यों ले जा रहे हो? तो साधु ने बोला, महर्षि ने दे दी, मैंने ले ली, तुम्हें क्या? तो महर्षि ने दे दी, पर तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि महर्षि से उनके बैठे हुए स्थान को पाने के लिए? Isn't your greed and lust lawful? तुम ऐसा पूछ सकते हो क्या भगवान से? वो तो हर बात के लिए हाँ हाँ करेंगे। पर तुम्हारी क्या 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 सोच है? तुम किस सोच से उससे उन्होंने मांगी है? तो साधु का और दंडपानी का बहुत झगड़ा हुआ। तो इस बीच में एक भक्त बोल रहे कि यू आर एंजॉइंग द एंटरटेनमेंट प्रभु करके बोल रहा था, रमन हंसते हुए रमन महर्षि को देख के। तो रमन महर्षि ने बोला, इन सभी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है सन। जो आके उसने दिया और रिक्वेस्ट किया मुझे बैठने के लिए, मैंने बैठा। जो आके उसने रिक्वेस्ट किया मुझे चाहिए, मैंने दे दिया। तो here we have to understand how the renounced siddhas, how the maharshis, they renounce everything. They don't have any tie to the objects. And here in the morning, the discussion happened with a very tiger skin. And here Raman Maharshi have proved he is not attached to the tiger skin. तो हम वर्स 6 पढ़ रहे थे। बन्धुरात्मन मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मन जितः
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत्. तो मीनिंग ऑफ दिस इज, for those who have conquered the mind, it is their friend, and for those who have failed to do so, mind works like an enemy. Even the sages, even the siddhas, even the karma yogis have this problem. So, one of the I have recently heard one of the gurus Vakya. He was saying, even though I am very well known for my Kriya Yoga, I do have feelings and attachments, and my manas इधर उधर भटक जाती है. कई बार मेरे मानस मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पे भटक जाती है. तो मैं उधर जाके वो मेरे ग्रैंडसन से जितना टाइम मुझे स्पेंड करना है वो स्पेंड करके उनसे हैप्पीली वार्तालाप करके मैं फिर से आश्रम पहुंच जाता हूँ. तो आई कैन दैट वे आंसर माई माइंड, कंट्रोल माई माइंड. बाय डूइंग ए एक्शन आई कैन कंट्रोल माई माइंड. तो हर कोई अपना अपना मार्ग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई माइंड उसको ही मास्टर करना पड़ेगा. किसी के बातों से हमारा माइंड खुद का काबू में नहीं आती है. क्योंकि हमारा केज है, हमारा टाइगर है, हमको ही उसको छाट छाट के सही करना है. तो हर कोई का अपना एक मार्ग होता है, वो मार्ग ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को. पर मार्ग ढूंढने के भगवान की पूरी समृद्धि होगी हमको. एंड हमने ये ध्यान मार्ग चूज किया है टू गेट ओवर एंड कंट्रोल अवर माइंड. तो हम इस ध्यान मार्ग में हमारे माइंड के ऊपर, कुछ लोगों को माइंड कंट्रोल करना इजी है, कुछ लोगों को माइंड के परे जाना इजी है. ये आपको समझना है कि डू यू वांट टू रेनाउंस योर थॉट्स, और डू यू वांट टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड डू प्रोसीड इन योर प्रोसीड योर इन योर एलिवेशन. जो माइंड को कंट्रोल करते हैं इट इज अ टेम्पररी थिंग. जो माइंड और थॉट्स को रेनाउंस करते हैं इट इज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ योर एवोल्यूशन, to say of our evolution. So the next verse of it is चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषणसुखदुःखेषु तदा मान अपम तदात्मानमानये. So, the meaning of this verse is the yogis who have conquered the mind rise above the dualities of cold and heat, joy and sorrow, honor and dishonor. Such yogis remain peacefully and steadfast in their devotion to the gods. तो भगवान ने सृष्टि का ये ड्युअलिटी में ही क्रिएट किया है, क्योंकि सही गलत, सच झूठ, ये अंतर और फर्क को हमको समझ के उस बीच के रास्ते से, नॉन ड्युअलिटी के रास्ते से हमको निकलना है. दोनों तरफ हमारी सोच पड़ेगी, पर दोनों को धर्म अपेक्षा करके हमको हमारी चेतना को समझ के हम खुद अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके नॉन ड्युअलिटी वे में हमको चलना है. हमको चलने का मार्ग एक ही है, पर हमारे मार्ग में इस तरफ भी फीलिंग्स थॉट्स एंड वस्तु है, उस तरफ भी फीलिंग्स थॉट्स एंड वस्तु है. इस तरफ सही वाला हैप्पी वाला फीलिंग्स एंड थॉट्स है, जो वन विच वी एंजॉय. एंड इस तरफ द सॉरो वाला थॉट्स एंड अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड थॉट्स है. तो भगवान बैलेंस रखने के लिए ड्युअलिटी क्रिएट किया है. किस में बैलेंस रखने के लिए? सृष्टि में. सृष्टि कौन है? आप हो. तो आप अपने अंदर के जाके नॉन ड्युअलिटी फॉर्म में हमको डेवलप करना है. यही एनलाइटनमेंट का एक ही मार्ग है. एंड द वेरी इजिएस्ट फॉर्म ऑफ नॉन ड्युअलिटी इज non attaching to the things, objects, non attaching to the actions, and attaching and yourself to the non duality way.
the Dharma Marga, the Dhyana Marga. Sukha Maharshi, he was a very first one in this Kali Yuga to to propagate about the benefits of meditation, to propagate about the self-awareness, propagate about the inner self journey. वही परीक्षित महाराज से ये करे हुए थे प्रैक्टिकली। परीक्षित महाराज को भागवत पुराण के अनुसार अनुसंधान करते हुए he have made him realize about ध्यान on Bhagavad Tattva, about Bhakti Marg, about self inclination, about self awareness, about self inner journey. तो परीक्षित महाराज ने क्या किया था, इनर जर्नी करके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेट करके वो मोक्ष पाए थे। ये सुख महर्षि प्रैक्टिकली ही हैव प्रूव्ड दैट इनर जर्नी, self evaluation, self awareness is only the way, and meditation is a very easiest way, the very fruitful way in Kali Yuga to get enlightened. So here I will start. I will stop the reciting, and we will all start the meditation. Masters, just give me a second. I'm connecting my charger. Sorry. क्षमा करें. So we'll all start with the meditation, masters. Just close your eyes, clasp your fingers into fingers, and be in a very comfortable position. In whatever position you want to put down your legs, or you want to fold up your legs in a lotus asana, padmasana. Just be free. Stretch your shoulders, but don't be rigid on your shoulders. Free up your mind, body, and your soul. Just free up your mind with the thoughts. Before this session, on a count of 1, 2, and 3, take a deep breath in, masters, and a deep breath out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And gently slow down yourself, masters. Forget about everything. Forget about your situations, your pressures, your pleasures. Just be with yourself in the calmness of divinity. We can all be a very good host for our soul, mind, and body. It's just a practice that is needed. And believe it, it is happening with you. Let's all visualize the unbounded sky. Let's all feel the vastness of the sky.
Feel like a bird. You have got wings of freedom. Stretch those wings, the very bright ones, the very giant ones. You're capable masters. Free up yourself with those wings. You have got the possibilities. It's only that you're doubting yourself without stepping into the possibilities that you have got. Self doubt is a very enemy, masters. So we will journey towards the self belief today. Everything is possible for us. It is our inner self connecting to the Paramatma. It's you, the very awareness that is now understanding the presence of God. If not with your awareness, how possibly you will know the word of God? तो हमारी इनर जर्नी यहीं से शुरू होती है मास्टर्स। अपने आप को समझिए, आप किसी से भी कम नहीं हो। You are the enlightened one. It's just the dust, it's just the ignorance that has covered up. So let us work on our emotions, masters. Anger is tied to situations, peoples, and objects. When we detach ourselves from the objects, from the situations, and the people connected, there is no place for anger in your soul and in your mind, masters. Let's work it out, masters. Here we are addressing our anger. Understand, every situation is a lesson, and we are born to experience those lessons. Just understand, anger is unsettled. Your silence and your pleasant feeling, Brahma Tattva, Brahmanubhuti, is permanent that resides in you from many lifetimes. So we are shedding our anger, masters. Some of you might feel itchiness or a sensation of a burning sensation. It's completely okay, masters. You're shedding off your ego that is attached to your anger.
The masters are helping you. Do not incline towards the attachment, masters. We are in a process of detachment. Do not pay attention whatsoever, whosoever said it to you. Right now, our only action is to wave off those experiences that are unwanted, that are disturbing us. Just let them go. Do not hold on them. Take a deep breath and breathe out, masters. And understand we have shedded our anger now, right now, and we don't even remember what have caused us. It's gone to greed or lust. It's just a mist in the time, masters. The object we possess is a very responsibility. It's not a pleasure. So by understanding, masters, let's just simplify our life. If we have a need, a minimal requirement of an object would work for it. Bhagwan have blessed us with many objects in our life, but he is also saying, do not get attached to the objects. So say gratitude to all the objects that we are using in our daily life, and they are supporting us to lead our life peacefully. Thank you, thank you, thank you. Some of us have a desire towards the objects, so manifest it. Let them come true in your life and say thank you to them for coming in life. But do not get your thoughts surrendered to those objects. Be in the beauty of Bhagwan. Be in the beauty of Atma. Be in the beauty of your inner self. Be in the beauty of your transformation. Do not attach your thoughts admiring the object. Instead, attach your thoughts with Paramanubhuti, with the consciousness that is universal.
Take a deep breath, masters. So breathe out, let the feelings go, let the desires go. Understand, masters? Ignorance is a bliss. Just ignore your thoughts whatsoever. Do not address them. Being right this moment. Enjoy the time you have got for yourself today. And it's the godly desire that you have made for yourself. And be proud of it. Be proud of the step you are taking towards your transformation. Generously pat on your back and say, I'm doing great. I'm progressing in my life, both spiritually and physically. They are interconnected, masters. As you progress spiritually, you will see the results in your physical life. Do not bend your spine, masters. Keep it straight. And rest your shoulders. Feel free, feel free to express yourself within you. Your inner soul and your higher self are non-judgmental. Then don't judge you for whatever so you do it. They only guide you, saying it's not the way to progress in the enlightenment. It is for us to decide and choose the right path for our consciousness. Nothing is impossible, masters. अपने आप को समझिए के अंदर के चाक को देखिए वो प्यार जो आप पाना चाहते हो वो अपने खुद में है. Just realize the love that you have got unabandoned the master's actions.
Let's all come together and visualize we are holding one another's hands and say, O Paramatma, O Deva, I am here to shed off my miseries, sorrows, greed, lust, fear, anger, with the strength of our souls, strengthen our mind, strengthen our body, strengthen our soul, and give us the progress towards the enlightenment. And we are all seeing that progress happening within us. Let go of our anxious feelings, masters. It is not needed for us. We are completely okay. We are completely fine. I'm saying sorrow to myself, not accepting it the way it is. I'm sorry, but I now understand. You're bright. You are a star. You're the enlightening being. You're the energy that is transforming towards the universal consciousness, towards that inner light. Be in this mode of self-belief, masters, and be in a belief that everything is possible for you, and all the opportunities you desire is right on the gateway. It's only you have to pick up that up. You have got that present. Just pick that up and work on it without attachments and without thoughts attaching to your desires. The pain is evaporating in you, masters, enlightened masters. Sri Krishna is here, healing us in every cell of our body. Please understand, it is your feelings and thoughts that is giving you a cause of pain.
whatsoever you're holding on in your body. Just untie your feelings and thoughts to the pain you have and see how it completely vanishes in you, how you will completely transform and heal by the universal consciousness. Get your concentration, focus on wherever you are feeling pain right now. Just affirm it. You're just a pain, and I'm letting go of you. And my healing is progressing in a great manner. And if you're seeing unwanted thoughts, please let them go. Untie yourself, masters, with all those feelings, thoughts that are hurting you every day. Remember, healing is in progress. So it's in this time you shred all those unwanted that you're carrying on from a long time. It is your belief system that will give you the ease, that will give you the freedom, that will give you the wings to fly towards the enlightenment. Few more minutes, masters. Just concentrate on your breath. A bit of your time is giving you a huge, vast transformation and freeing you up and healing you up, which is very much needed in our lives right now. Concentrate on your breath, masters. Breathe in and breathe out. Your focus has to be just in understanding you. Okay, on the count of 1, 2, and 3, we are all come back, masters. Get ready for yourself and place a smile on your face with the love in your heart, the determination towards your destiny, and the fearlessness of a wing that you have got today.
Breathe in, masters, and gently breathe out. Breathe in, masters, and breathe out. Breathe in and breathe out. Completely surrender, masters, to the Parabrahma Swarupa, and thank Sri Krishna for giving this time, space to work on ourselves right now. So gently place your hands, rubbing them on your eyes, and believe everything is a possibility that is on your very doorstep, and you will have that faith and strength to pick this up and change your inner self and higher self, and by changing your physical life right now. Hare Krishna. Thank you, friends. Thank you for joining with us. Thank you for sharing all your energies. It has been very wonderful and pleasant meditation for me, and I believe it happened for you as well. Thank you. Thank you very much, Sujana ji. Um, deep, deep gratitude to you also. During the meditation, the cat was sitting in means doing meditation. I was so surprised. I opened my eyes twice, and as in today's session, you mentioned about animals also, and I was like, look, before he was playing here and there, and now quietly sitting next to me doing meditation. And it being a human being, I might not understand, but I don't know in his previous reincarnation who he was, or which what kind of soul he is holding within himself. And today's chapter means so many things we learn every day. When you were talking about the lion stuff, he was. It is showing that the person who live in present moment with detachment. If you take something from them, it won't bother them. It won't bother them. But on the same time, if a person is very materialistic, they are so much attached with that. uh, uh, their mind is 24 hours in that thing. Oh, how this can happen? Oh, how means this? And here Lord Krishna is telling us that detachment is the best thing. Detachment doesn't mean that you don't have to serve others. Detachment means like I can't live without that thing. Why you're in that zone? uh, when someone is alive, it is very, it means that time we won't show love or affection sometime, but the moment that person passed away, the people around them, they feel like, I can't live without that person, right? But if they, when the person was alive, if they have that type of mindset, that I don't have to get attached to this person, so later on they won't suffer. So many things come up when you were sharing today's versa. And detachment is also about not only about the things we have. Detachment is from the work we are doing for ourselves, for others also, where I won't allow myself to get like in my mind that, oh, I'm doing it, I'm nothing. If right now Lord Krishna won't guide us to go with Bhagavad Gita, who am I?
I'm nothing. He is the one who guided me कि ये करो, तुमको भी भगवत गीता पढ़नी है और ये तुम्हें सुबह करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा चीज को कब तुम्हें करना है। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले उसको सोचो, फिर सारा दिन उसी चीज के बीच में रहकर अपने आप को करो। तो कितनी अच्छी है। हम छोटी छोटी चीजों में हम अटैच हो जाते हैं, खाने पीने से हम लोग अटैच हो जाते हैं। इतना अटैचमेंट हो जाती है फूड से कि बिना मुंह चलाए रह ही नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वी नीड समथिंग टू ईट, है ना, होती है ये चीज, है ना। और हम पोजेसिव बहुत हो जाते हैं, ये मेरा, ये तेरा है। मतलब नथिंग बिलोंग्स टू अस। अगर फिजिकल फॉर्म में भी देखो, नथिंग बिलोंग्स टू अस। ये तो सिर्फ अच्छा हमारे पास मतलब हम सब की को मालिक की बहुत कृपा है। हम सबके पास कपड़े होंगे। आप देखना, जो कुछ कपड़े होते हैं हम कहते हैं ये शादी का के लिए कपड़े हैं और ये उसी टाइम पहनेंगे, बाद में नहीं पहनेंगे। और वो चाहे खराब भी हो जाए, पुराने भी हो जाए, आप उसको किसी को नहीं देंगे कि किसी के काम आ जाए। आप फिर भी उसको अलमारी में रखते हो, क्यों? आपकी अटैचमेंट है। अरे मैंने पता है इतना पैसा लगाकर इसको महंगा खरीदा था, तो मैं इसको किसी को कैसे दूं? मतलब एक ही ये जो ऋषि मुनि है, वो कितनी कितनी सारी हमको अवेयरनेस देते हैं। और रमना ऋषि जी का जो आपने एग्जाम्पल दिया, देखो ऋषि जी का और उनकी जो वो थी डिवोटी था, उन दोनों का कितना चेंज है उनकी थॉट प्रोसेस में। गुरु का की सोच कैसी है और शिष्य की सोच कैसी है। गुरु को तो पता है कि वो अटैच नहीं है, बस शिष्य को लगता है मेरा गुरु इसके साथ में अटैच्ड है। और उसने लॉयन का उसकी बात की। और कैसे मतलब गुरु की ही ये विधि हो सकती है कि उन्होंने किसी को ऐसे इंसान को बुलाया कि मैं अपने शिष्य को दिखाऊं। क्योंकि देखो जो पहले ऋषि मुनि थे ना, उनकी शक्तियां बहुत अपार थी उनका की साधना की वजह से। और तो जब वो आया है भी है, दूसरा शिष्य आया, उसने जैसे मांगा उन्होंने उसको इमीडिएटली दे। तो ये लेसन हम सबके लिए भी है कि हम अपनी लाइफ में हर एक चीज को किस तरह से लेते हैं। हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड कृष्णा। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, जो हम अपनी डेली रूटीन में ना ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार लोगों का मतलब ये भी अटैचमेंट होती है हमारी, चाय पीनी है जी मुझे, ये इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। नॉन वेज है जी, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। बट जब हम उसी चीज को अगर अपने पास्ट के साथ में जोड़ के देखें, जो जब सभ्यता का निर्माण ही हुआ था, तब वो क्या खाते थे? कंदमूल खाते थे, घास फूस खाते थे, और वो उसी के ऊपर सरवाइव करते थे। तो और अब इसी चीज से पता लगता है कि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती, बट मुझे डिटैच कैसे होना है, मुझे उसको कैसे उसके बीच में से एक अच्छी चीजें ढूंढ के निकालनी है। तो थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा। और मैंने कल कुछ होमवर्क भी किया था, मैंने प्रॉमिस भी किया था, मैंने वो डाउनलोड किया है 1 मिनट में। वो भी कुछ एक चीजें हैं मतलब मुझे लगता है हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता से जुड़ी हुई कुछ और चीजें भी अगर हमको पता लग जाए ना, तो हम लोग वो भी अपनी लाइफ में अगर उसको अप्लाई करें तो वो बहुत कारगर होगी कि अ, हमें कितनी कितनी नॉलेजेस है, चीजें हैं जिसका पता ही नहीं है। हमको पता ही उसका उस वक्त लगता है जब वो चीज मेरे साथ एक्चुअल में होती है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही सारी चीजें मैंने की है। तो माफ करना अगर कोई चीज आपको लगे कि ऐसे ही रख दी है। तो इसमें ना महाभारत की कुछ एक कहानियां हैं जो रखी गई थी। अरे, तो इसमें काफी सारे चैप्टर्स ऐसे दिए गए हैं कि बताया गया कि लाइफ में कितनी कितनी इम्पोर्टेंस है। पहली चीज तो ये है कि जो द्रौपदी थी, अगर वो उसको दुर्योधन के साथ में मिसबिहेव नहीं करती, उसको ये ना कहती अंधे का पुत्र अंधा है। क्योंकि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। माइंडसेट कैसे दूसरे इंसान को प्रभावित कर सकता है, हम लोग सोचते ही नहीं है। हम किसी को भी किसी भी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और एक और इसमें उदाहरण दिया कि जो श्री कृष्ण थे, वो ऐसी लीला करते थे कि देख लो, उन्होंने शेष नाग
जो इतना जहरीला है उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है। तो यहाँ पे भी महाभारत में हमको सारी चीजें जो अलग अलग उनकी लाइफ के चीजें ना, मैं उनको को रिलेट करके बता रही हूँ कि वो जहर हमारे अंदर है अहंकार का, कि मैं कुछ हूँ, मुझे दूसरे को डोमिनेट करके बड़ा मजा आता है। बट जब वही चीजें मेरे साथ होती हैं आई कांट टेक इट, कि अरे ये नहीं है। हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। हम जो पास्ट में पता नहीं कितने सालों पहले चीजें हो जाती है, आई स्टिल हैव विद इन मी। बट श्री कृष्ण ने इतने जहरीले सांपों को भी, शेषनाग को भी, उन्होंने कैसे, मतलब वो तो लीला ही कर रहे थे एक्चुअल में, उन्होंने उसको भी कंट्रोल किया। फिर आता है कि जो ये पांडव थे, जब देखो ये द्रौपदी के साथ में शादी करके लेकर आते हैं, तो जब वो वन में लेकर जाते हैं उसको, तो उनकी माता श्री ने क्या किया, उन्होंने कहा जो भी तुम दान में लेकर आए हो पांचों भाई बांट लो, बिना देखे कि क्या चीज वो लेकर आए हैं, पहले मैं उसको देखूं तो सही। बिना देखे ही उन्होंने उसको ये कर दिया। उनकी उसकी वजह से जो द्रौपदी थी उसको कितना सफर करना पड़ा। ये एग्जाम्पल्स पता नहीं मुझे क्यों ऐसा आया कि हम लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में जी बड़े बड़े चीजें हो जाती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे। बट आप एक देखो कि उन्होंने अपनी मदर के वचन की को रखने के लिए पांडवों ने उसको एज ए वाइफ एक्सेप्ट कर लिया। बट लुक एट दैट लेडी, मतलब द्रौपदी जी, जिन्होंने भी उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया। ये तो माँ की आज्ञा है ना। और फिर लाक्षागृह हम लोगों को पता है कि वो लाख से बना हुआ था, तो क्या उनको पता नहीं था पांडवों को? उनको सब पता था। पर वो विधि के विधान के साथ जाते हुए उन्होंने सभी चीजों को वैसे वैसे ही किया। तो छल कपट जब हर एक जगह है, तो हर एक जगह है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है? उसको बैलेंस हमने तभी करना है जब मैं अपने माइंड को डिटैच करके रखूं। अगर जो कुंती माँ है, अगर वो अपने आप माइंड को डिटैच कर कर रखती, तो कभी ये ना कहती कि जो भी लेकर आए हो बांट के खा लो। उनकी लाइफ खराब, मतलब हमको लगता है कि नहीं, बट अगर उस सिचुएशन में आप खड़े हो, आपको कोई ये चीज करे, आप लोगे उसको? नहीं लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो और उस फिर भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को आगे कर दिया गया। ठीक है, शिखंडी को श्राप मिला था। तो सॉरी, शिखंडी ने ही उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु मेरी वजह से होगी। कितनी कितनी लाइफ लेसन्स हमको भगवत गीता से मिलते हैं। और हमारी अवेयरनेस हमको बताती है कि अगर मैं किसी चीज के लिए अपने आप को सोचूं ना कि मेरा अंत नहीं होगा, ईश्वर ने जिस चीज को उत्पन्न किया है उसको खत्म करने का भी उसने पहले से प्रारब्ध किया हुआ है। So never ever think कि I am something, you are nothing. Live in the present moment with full detachment. ये attachments की वजह से ही महाभारत हो गया। बिकॉज ऑफ क्योंकि उसने 5 गांव नहीं वो दे सकता। दैट पर्सन वाज सो मच अटैच्ड विद हिज ईगो, प्राइड, है ना। उसकी पावर दिखानी चाहिए थी अपनी। और इवन लॉर्ड कृष्णा जो थे, कलयुग के हिसाब से उन्होंने देखा, उन्होंने उसको सतयुग नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि छल कपट तुम्हारे से इतने टाइम से हो रहा है, कब खड़े होगे अपने लिए? यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये नहीं है कि कोई भी आकर आपको कुछ भी दबाता जाएगा तो आप सोच लोगे कि नहीं नहीं यार, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा सिस्टर, आई कांट डू इट टू देम। और किसी और इंसान को, जैसे अर्जुन यहाँ पे इस चीज में आ गए बिगनिंग में कि अरे अपोजिट में तो मेरे ही फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे नहीं करना है। पर क्या जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, बट उनकी वाइफ ने भी जो थी उन्होंने भी पट्टी बांध ली थी। ठीक है। तो वो इससे एक चीज आती है ना कि ब्लाइंड फेथ कर लिया कि एक पर्सन ऐसा है जी, मैं भी अपने बांध लेती हूँ। बट वो पट्टी आंखों में बांधने की बजाय उन चीजों के ऊपर मतलब आई एम जस्ट को रिलेटिंग हूँ कि हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, कि हमको अपनी आंखों में उन चीजों के लिए पट्टी बांधनी है जहाँ पे मुझे दूसरा जना अपने से श्रेष्ठ लगता है,
तब मेरे में जेलसी का भाव नहीं आएगा। जहां मुझे लगता है कि मेरी मतलब कई बार ऐसा होता है या आपके खुद का ही माइंड सेट अपने लिए इतना गंदा होता है कि आप दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हो। जो आईना होता है ना, वो हमें हमारा ही प्रत्यक्ष रूप दिखाता है। और महाभारत में भी वो ही चीज, अभी ये जो युद्ध का सीन पीछे दिख रहा है, वो पीछे एक तरफ सैनिक खड़े हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही चीज हमारे साथ हर एक टाइम हमारी लाइफ की सिचुएशन में होती है। आपके पास पूरी इंट्यूशन होती है, आपको सब कुछ पता होता है, फिर भी गलत काम करते हो। फिर जब जो जैसे ही आप अपनी भाव रखोगे, स्वभाव रखोगे, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। बट अगर मैं इस चीज को ऐसे करूं, जब हम काम पर जाते हैं, हमको पता होता है मुझे पैसे मिलने हैं, मैं काम के ऊपर ही ध्यान देती हूँ, मैं फालतू चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ भी चलती हूँ कि अगर अगर मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो मतलब मैं काम में ज्यादा टाइम स्टेबल नहीं रह सकती, ठीक है। और वहां पे हम लोग हमेशा चीजें एकदम जैसी नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। हम कैसे बैलेंस बना लेते हैं? क्या मैं वही चीज अपने नॉर्मल लाइफ में भी करती हूँ? क्या मैं वही थ्योरी स्ट्रेटेजी अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ? क्योंकि महाभारत जो मैं देखती हूँ, आपकी वर्क फील्ड ले लो, आपका घर ले लो, हर एक जगह पे ये एप्लीकेबल है। तो ये दो चार इंसिडेंट्स जो थे महाभारत के, वो मैंने शेयर किए। ऐसे मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं। वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर तो मतलब वार्तालाप के साथ साथ जो उस काल की घटनाएं थी, वो भी थोड़ी आप सब भी किया करो। अगर आपको कुछ महाभारत की कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आपको लगता है कि आज के वर्षा के साथ में जाता है, ताकि इससे एक तो हमारी रिवीजन भी हो जाती है, दूसरा हमको भी कुछ नई चीजें, क्या पता मुझे कुछ चीज ना पता हो। कई बार हमारा ध्यान वैसा नहीं जाता है ना। तो ये भी आप प्लीज शेयर करना। और देखो कैसे मतलब कितनी इम्पॉसिबल सी चीज है, एक इम्बैलेंस है। एक जगह एक तरफ 5 लोग हैं और एक तरफ पूरी काइंड ऑफ दुनिया है उनके अगेंस्ट, राइट। कितनी बड़ी चीज उस वहां से हमको सीख मिलती है कि हम जब कई बार कोई कार्य करते हैं, तो जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप रहे हैं ना, वो भी उन चीजों को भुगत के गए हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी होता है ना, रादर देन गोइंग अगेंस्ट दैट, रमना ऋषि जी ने जैसे वो डिटैचमेंट सिखाया आज के चैप्टर में, लॉर्ड कृष्णा ने हमको डिटैचमेंट, न्यूट्रल हो जाओ, डिटैच हो जाओ उस चीज के साथ में। आप क्यों चाहते हो कि चीजें वैसी हो जैसे आप चाहते हो? अगर वो नहीं हो रही है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लो। वो वहां पे ईश्वर आपको सिखा रहा है कि यू आर टू मच इन अटैचमेंट विद द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। अगर किसी और को भी कुछ शेयर करना है तो प्लीज अनम्यूट करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ये ऐसी एक पूंजी है जो जितनी हम शेयर करेंगे वो बढ़ेगी, हमारी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी, सामने वालों की भी बढ़ेगी। तो प्लीज अगर किसी और को भी कुछ शेयर करना है, आई थिंक इंदु जी इज द राइट पर्सन। उनके पास भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज होगी। अगर इंदु जी आप भी अनम्यूट कर लें और हमारे साथ शेयर करें, अगर आप किसी और को कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। जी, आत्मवंदन। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी। आवर के बहुत सारे इंसिडेंट्स दिए जो हमने दूरदर्शन में देखे थे ना, वो काफी सारे स्टोरी याद हो गए। लेकिन एक ही स्टोरी मुझे कभी कभी मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, या कुछ बोलते हैं ना, सिर्फ माँ के कहने पर उन्होंने एक लेडीज को उन्होंने 5 जनों ने पत्नी मान लिया, तो वो जरा सा मालूम नहीं क्यों है, तो मतलब कभी कभी खलता है मन में कि जस्ट फॉर दैट से जैसे। वैसे तो और एक स्टोरी भी फेमस है, जब श्री कृष्ण उनके घर पे जाते हैं तो उनके घर पे चावल नहीं होता है, लेकिन वो टोप में एक दाना दिखा के श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ तो ये तो है ना, आप क्या बोल रहे हो, आपके घर में चावल नहीं है घर के। तो वो एक दाने से पूरा टोप भर जाते थोड़े देर में, ऐसा वो भी स्टोरी काफी फेमस है एक्चुअली। लेकिन वो पांडव जी का वो आप बोलते रहो, वो थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है कि उसमें और थोड़ी मतलब वो फुल क्लैरिटी नहीं है उस स्टोरी में, ऐसा कभी कभी लगता है actually।
सिर्फ माँ के कहने पर कोई मतलब एक ही स्त्री 5 आदमी लोग का पत्नी बनने की मुझे बहुत मतलब प्रैक्टिकलिटी बहुत कम लगती है। नहीं, उसके पीछे भी कारण है जी। मतलब द्रौपदी जो है, द्रुपद महर्षि की पुत्री है, वो अग्नि अग्नि से पैदा होती है। उनका वो अयोनि है। और जो पांडव, पंच पांडव है, वो एक ही आत्मा से पैदा हुए थे। भले ही उनका शरीर अलग हो, पर उनका आत्मा एक ही है। तो इसीलिए ये संभव हुआ था। जब वो द्रौपदी भगवान से पूछती है, मुझे पति भिक्षा दे दो, वो unknowingly she will with a doubt in her mind, unknowingly she will ask it for 5 times। तो भगवान ने बोला, तो तुमको जो चाहिए वो मैंने दे दिया। तो ये इसका पीछे का कहानी है। अच्छा, ओके, ये पता नहीं था एक्चुअली। देखो ना कितनी चीजें हैं ना, वही मैं कहती हूँ जब हम शेयर करते हैं ना, क्योंकि अब हमें पीछे का भाव नहीं, अब हमने आपने कितनी बारी महाभारत देखी होगी, मैंने कितनी बारी पढ़ी होगी, हम लोगों को इन चीज का ही नहीं पता। मैम थैंक उसकी यू और एक सुजान। स्टोरी भी फेमस, ये और एक स्टोरी भी फेमस है। जब कुंती जी को, पांडव जी की माँ को जब शादी के दिन एक वरदान टेस्ट करना रहता है कि वो जो मांगेगी मिल जाएगा, तो वो गलती से ट्राई करने के लिए मांगती है। तो भगवान बोलते हैं मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, तो वो कर्ण वहां पे बच्चे को देके चले जाते हैं। वो भी है ना, मतलब इंसान को भी कुछ ये करने ट्राई करने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए, वही उसका भी एक कारण है वहां पे। ये स्टोरी पता है ना मैम आपको? हाँ, हाँ जी, एक वो भी तो है, और ऊपर से देखो ना, उनको पता था करण के जो कुंडल हैं वो कितने वो हैं, वो भी उससे बेचारे से धोखे से ले लिए जाते हैं। वो भी उससे धोखे से ले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता होता है कि उसके बिना उसको मार नहीं सकते हैं। तो यस काफी राइट। सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है ना, कि आप सोचते हो कई बार कई चीजें हम कैसे कर सकते हैं, पर अगर आप पास में जाके देखो ये चीजें हुई हैं, क्योंकि वो कलयुग था। युग भी तो डिफरेंट था ना, युग डिफरेंट था, इसलिए लोगों की को फिर इसीलिए कृष्ण जी ने बोला ना, जैसे को तैसा करके दो। जैसा जैसा टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे लोग हैं उनके साथ में उन्होंने वैसा ही डील किया। उनको भी पता था कि देखो कोई भी चीज होती है, हम लोगों को पता होता है कि वो प्री प्लान्ड है। हमारी लाइफ में भी हम लोग सब कुछ पहले प्री प्लान करके आए हैं। तो वो वहाँ यहाँ पे भी तो वो जो ब्रह्मज्ञान मिल रहा है वो उसको नहीं ना मिल रहा, हम सबको मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें महाभारत से सीखने वाली है, अगर एक इंसान उसको कि एक एक चीज के साथ में कनेक्ट करे कि कैसे। और देखो ये भी तो डिटैच थे ना भाई, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, चले गए वन में, दे एक्सेप्टेड इट। कौन एक्सेप्ट करेगा? ऐसे कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्यों जाए हम लोग। पर ये डिवाइन का प्लान था, डिवाइन ने उनके लिए क्रिएट किया था। काफी मैम सारी ऐसी स्टोरीज है, लेकर आया करो शेयर करा करो जी। जी राजेश जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था ये जो एंड ऑफ द स्टोरी है, ये भी सच बात है क्या? मतलब पांडव लोग बाद में स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तो ये They were in the journey of enlightenment जी। वो एनलाइट। स्वर्ग और स्वर्ग, मतलब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग हमको हमारी भाषा में होती है, मतलब उसका पूरा भाव है एनलाइटनमेंट। तो उनको भी एनलाइटनमेंट के मार्ग में परीक्षा देनी पड़ती है। और सारे जो परीक्षा में वो पास हुए थे, वो धर्मराज और उनके साथ एक कुत्ता था, वो असल में यमधर्मराज थे। तो हाँ, उनको ना ये पंच पांडव को अपने आखिरी, वो सारे डिटैच हो गए थे। मतलब दे हैव डिटैच्ड एवरीथिंग दैट दे हैव वन, इट इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज डिटैचिंग with the things that with a kingdom that they have fought, losing everyone is a complete detachment। और उनका वो धर्म का परीक्षा एक मार्ग था कि छोटे छोटे चीजों में उनका अटैचमेंट थी तब भी। देन दे हैव गिवन दैट परीक्षा, दे हैव गिवन दैट एग्जामिनेशन टू गेट थ्रू द एनलाइटनमेंट।
ओके, थैंक यू। ऐसा मैं समझती हूँ। यस। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो सुजाना जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये सारी चीजें से हमको कितनी चीजें देखो अभी इस राजेश ने बोला, आपने बोला, कितनी सारी चीजें हमको भी याद में आती है, अच्छा हाँ ये ऐसा भी था, हाँ, है ना। तो अच्छा है रोज जब भी आफ्टर द सेशन, मतलब रादर देन कुछ इधर उधर की बातें करने के, बेटर है कि अगर हम महाभारत के पात्रों के साथ में जुड़ी हुई कोई चीजें बातें शेयर करें तो वो भी वो। और चक्रव्यूह का देखो, कितना अभिमन्यु का है कि उसने माँ के गर्भ में उसको सीख लिया, तो वहां से भी हमें सीख आती है कि अ, हमको लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसी के बाद में बच्चा लर्न करता है, नहीं, द मोमेंट वो वूम में आता है वो तभी से लर्न करना शुरू कर देता है। तो कितनी अवेयरनेस एंड अलर्टनेस थी कि उसने उस टाइम पीरियड में उस सोल ने सारा कुछ लर्न कर लिया, और उस लर्निंग को उसने कहाँ जाके यूज किया, युद्ध में जाके यूज किया। और वो कैसी लर्निंग थी जहां पर मतलब उसको मतलब ये एक ऐसी लड़ाई में से निकलना था, और देखो कैसे उसको डिवाइन ने प्लान किया होगा कि उसकी मदर बाद में सोगी, उसको ये नहीं पता लगा या कि एंड क्या है, कैसे, मतलब हमको लगता है ना कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं, बट उसको बाद में कभी किसी ने नहीं सिखाया। ये भी बहुत शौकिंग, मैं कई चीजें ऐसे बैठ के जब सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि हम लोगों में से भी, तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कितने सारे जन्म होते हैं, हमको भी अब कई सारी चीजें अगर पता है, तो पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या क्या हमारी चीजों के ऊपर काम किया होगा। तो मैम और एक थैंक्स स्टोरी भी फेमस है, जो था ना अश्वत्थामा के बारे में भी फेमस है कि वो आज भी जिंदा है करके। जो उन्होंने पांडवों के सब पुत्रों को मार डाले थे ना उन्होंने नींद में, तो उनको भी शाप है, इसलिए उसके कलयुग में जख्म है। है यहाँ पर सिर में कहते हैं। ये हाँ जी। द्रोणाचार्य के वो बेटे अश्वत्थामा। हाँ। हाँ, वो अमर थे। वो आगे जाके वो जैसे हनुमान जी ब्रह्म का क्रिएशन का रोल लेंगे, सुना है कि अश्वत्थामा जी भी वो ब्रह्म तत्व है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व उनको की प्राप्ति में है, उनका तपस्या में है। तो वो आगे जाके वो एक ब्रह्म का रोल लेंगे किसी युग में, तो ऐसा कहा जाता है। मतलब वो अपने पाप से, अपने ये क्रोध और ये द्वेष से परे उठ के he traveled towards the ब्रह्म तत्व, अंडरस्टैंडिंग द ब्रह्म तत्व। तो इसीलिए वो उनसे श्राप की मुक्ति भी पाली उन्होंने, और ब्रह्म तत्व की ज्ञान भी पाली है। ओके मैम, थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you for being with us, pastors. Thank you for sharing your energies. We'll meet again on Monday. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Rajesh. Thank you. Thank you, Monica. थैंक यू। थैंक यू।